Hello student, good morning. Today I am going to start students probability. Probability is the 15 number chapter and exercise 15.1 is there, and question number 1, complete the following statements. Student, in exercise 15.1 question number 1 is given, filling the blanks. Now you read the question carefully and then you understand the question, then you will get your solution sincerely, and I will help you in solution according to your interest. Complete the following statements. Probability of an event. Student, probability of an event E plus probability of the event not E equal to. The students, previously I have sent you definition, the complementary events. There was a complementary events in which the events plus probability of the events, in which there was probability of the events plus probability of not events equal to 1. Then probability of an event E plus probability of the event not E equal to 1, and this type of two probability is known as complementary events. So your answer will be there 1. You can use as a formula further to solve the question in exercise. The probability of an event that cannot happen. Students, in second part, the probability of an event that cannot happen. Then in definition, you know that impossible events, the probability of an event that cannot happen is 0. जो हैपन ही नहीं हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट्स. ओके. Now third part, the probability of an event that is certain to happen is, the students, the probability of the events which is sure, that certain to be happen or happen, then the probability of an event that is certain to happen is 1. Okay. And such an event is called sure or certain event. Sure or certain event. Okay. Students, fourth part, the sum of the probabilities of the all elementary events of an experiment is. Student, in definition of the elementary events, it is clear that the sum of the probabilities of the all elementary events of an experiment is 1. Okay. And you must know where the favorable outcome of the two probabilities, two experiments are 1 are the same, then such kind of the events are not as elementary events. जैसे आप कोई क्वाइंस उछालेंगे, जब कोई क्वाइंस आप टॉस करेंगे तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा. स्टूडेंट्स, तो हेड आने का जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा वह 1/2 होगा, और टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी 1/2 होगा. तो आउटकम क्या है फेवरेबल दोनों का? सेम 1-1 है.
तो ऐसे दो इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमेशा 1 होता है स्टूडेंट्स। जैसे दोनों को जोड़ दीजिए PH प्लस PT, तो दोनों का क्या होगा स्टूडेंट 1/2 प्लस 1/2, वो हाफ हाफ मिल के क्या होगा 2/2 यानी 1 होगा। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई हैव सेंट इन the previous basic things about probability, that there is something just 0 is less than PE, means probability of event is less than is equal to 1. This is the range of the probability of any events. यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। यानी किसी भी इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 से छोटा नहीं होगा या 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी रेंज होगा कि 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, यानी कि 1 से क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, और ये क्या होगा 1 से छोटा होगा या 1 से बराबर होगा। तो ये लेस देन आर इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर विथ डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ स्टूडेंट यू सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. Now first question is, first part is, a driver attempts to starts a car. Starts a car. The car starts or does not start? Students ये बताइए, जब कोई आप कार देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो कार पुरानी होगी या तो कार नई होगी। तो जब कार नई होगी तो वो स्टार्ट भी हो सकती है, और जब नई होकर भी उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं भी स्टार्ट हो सकती है। जब कार पुरानी होगी तो स्टार्ट हो भी सकती है, जब कार में कोई ख़राबी होगी तो स्टार्ट नहीं भी हो सकती है। तो दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, दो अलग अलग संभावनाएं हैं। तो ऐसे में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कार है, पेट्रोल नहीं है, कैसे चालू हो सकती है? हाँ, तो इस तरह से ये ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन चालू होगी या नहीं होगी वो उसके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट। ओके, तो इसको लिखेंगे कि नॉट इक्वली लाइकली। इसका आंसर होगा स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट does not have equally likely outcomes, because क्योंकि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियाँ इसमें हो रही है। हाँ, जैसे नया है चालू हो सकता है जब पेट्रोल होगा, नया कार होकर भी जब पेट्रोल नहीं है चालू नहीं होगा। तो इस तरह से कार चालू होना ना होना अलग अलग परिस्थितियाँ हैं इसमें, इसलिए ये क्या होगा, इक्वली लाइकली ये आउटकम नहीं होगा। अब देखिए, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल में बॉल को शूट करना चाहता है, यानी बास्केटबॉल में डालना चाहता है। ही शूट्स और मिसेस द बॉल। अब वो प्लेयर गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकता है, और वो बास्केटबॉल में बास्केट में बॉल को डालना ना डालना अब तो प्लेयर के एफर्ट्स और उसके एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है ना, कि प्लेयर कितना स्मार्ट है, प्लेयर कितना एक्सपर्ट है, प्लेयर कितना प्रैक्टिस किया है।
अब कोई नया प्लेयर लेकर के बास्केटबॉल खेलने लगे, उसको आइडिया नहीं है और एक्सपर्ट नहीं है, तो वो बास्केटबॉल में शूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हैं? एक्सपर्ट होगा, वो बार बार प्रैक्टिशनर होगा, अच्छा प्लेयर होगा, तो बास्केटबॉल में शूट कर सकता है। तो इसकी भी परिस्थितियाँ उसी तरह है जैसे कि कार और पेट्रोल का है कि कार स्टार्ट हो सकता है या नहीं, तो वैसे ही प्लेयर बास्केटबॉल में शूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसके अटेम्प्ट और उसके प्लेयर के अच्छे होने या अच्छे खिलाड़ी होने पर डिपेंड करता है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं स्टूडेंट। तो इसलिए सेम स्टेटमेंट होगा कि दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, इसमें भी वही लिखेंगे, हैं? दिस स्टेटमेंट हैव डज नॉट इक्वली लाइकली, ये इसमें भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा क्योंकि ये परिस्थितियाँ अलग हैं? क्या है कि वो बॉल को शूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब थर्ड देखिए, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो अब बताइए कि इसमें से दो ही चीज़ है, एक आपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एक क्वेश्चन पे कि एक ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स, तो एक क्वेश्चन पे आप ट्रायल कर रहे हैं कि या तो इस रॉन्ग होगा या राइट होगा। तो इसमें तो दो ही इवेंट्स आ रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी आप जो रॉन्ग का होगा, प्रोबेबिलिटी आप रॉन्ग भी होगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी आप राइट भी होगा 1/2, क्योंकि दो ही चीज़ है रॉन्ग और राइट, तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट 1/2, तो दोनों का आप देख सकते हैं कि ये जो फेवरेबल आउटकम है 1-1 है। तो जब दोनों का फेवरेबल आउटकम जब सेम होता है तो इसको इक्वली लाइकली कहते हैं, यह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। देखिए 1/2 1/2 यानी कि रॉन्ग भी हो सकता है या राइट भी हो सकता है, इक्वल ये आपका जो है यह फेवरेबल आउटकम 1-1 है, इसलिए ये इक्वली लाइकली होगा, ये इक्वली लाइकली होगा। ओके, इसमें लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट विल बी इक्वली लाइकली, विल हैव इक्वली लाइकली आउटकम। और ये तो फोर्थ है, ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, तो सेम चीज़ है। जब इसका सैम्पल स्पेस आप निकालेंगे तो इसमें एक बॉय होने का या गर्ल होने का दो ही बनेगा, जैसे इसमें रॉन्ग और राइट बन रहा था। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बॉय होने का तो ये क्या होगा 1/2 बॉय होने का, और दो टोटल आउटकम कितने हैं 2 है, और गर्ल्स होने का जो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो वही होगा 1/2, यानी इसमें भी फेवरेबल आउटकम क्या है सेम सेम है, इसलिए ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट्स। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, और फर्स्ट सेकंड इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। तो आप परिस्थितियाँ समझ गए होंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन पे है और परिस्थितियों पर हैं, संभावनाओं पर हैं, लेकिन डीपली समझने की ज़रूरत होती है। इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप जाइए 3 पे। अब चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई इज ए टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो स्टूडेंट एक क्वाइन को जब टॉस किया जाता है, जब एक क्वाइन को आप टॉस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक क्वाइन को आप टॉस करते हैं तो टॉस करने में या तो आपको हेड आएगा, ओके, या आपका टेल आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस आपके बनते हैं 2, हेड या टेल, तो दोनों में से एक ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये है, फेयर का मतलब ये है कि या तो कोई नकली सिक्का बना के कोई टॉस नहीं कर सकता है कि दोनों साइड में हेड होड हो जाए या दोनों साइड में टेल टेल हो जाए, तो इसलिए इसको फेयर इवेंट्स या फेयर
why is tossing a coin considered to be fair? That is why it is considered to be fair, because we cannot do any kind of the cheating in this tossing of coin. Okay, so इसको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है. सो जब ये या तो हेड होगा या टेल होगा, तो हम इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, पहले से घोषित भी नहीं कर सकते हैं. नो नो, मेरा हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. इसलिए ये इट इज अनप्रिडिक्टेबल. ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये पहले से घोषित नहीं किया जा सकता कि ये टेल होगा या हेड होगा. तो ये अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण ये आपका जो कंसिडर्ड होगा फेयर वे. ओके, थैंक यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, यू सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, इसका आंसर ये देना है, ध्यान देना. अब 2/3 देखिए. अब आपको मैं यहाँ दिखा दूँ आपके क्वेश्चन के हिसाब से कि आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये ए आपका है 2/3 स्टूडेंट. तो 2/3 हैं, ये 2/3 आपका क्या है, ये हो सकता है. ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी होगा. क्यों? क्योंकि आप तो यही जानते हैं ना कि ये 0 और ये PE और ये 1 ये हो सकता है. तो ये 2 क्या है, 2, ये 0 2 आपका 2/3 है. तो जब आपको डिवाइड करेंगे आप इसको तो 0.66 आएगा स्टूडेंट. जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा. तो 0.66 0 से बड़ा है, यानी 0 छोटा है, और 0.66 1 से छोटा है. इसलिए ये 2.3 क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी होगा, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा. ठीक है. और ये देखिए बी क्या है, -1.5. तो स्टूडेंट 0 इज लेस देन आर इक्वल टू PE, आज लेस देन इक्वल है, लेकिन इससे तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 0 से ये छोटा है. -1.5 इज लेस देन 0. ओके, so it does not hold this range of probability, so it will not be, यानी ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा. तो ये लिखा है क्वेश्चन में, आप देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि विच फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो बी नहीं हो सकता है क्योंकि ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी में नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर आपका होगा बी. ओके, बी नहीं हो सकता है. आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी, कि ये नहीं हो सकता. -1.5 कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ओके, अब आगे आपको मैं बताना चाहूँ कि आप कहेंगे कि सी कैसे होगा. तो सी होगा, सी देखिए 15/100 लिख सकते हैं. 15% को 15/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही होगा जो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, इसलिए ये होगा. डी क्या है, डी में 0.7 है, तो इसको 7/10 लिख सकते हैं. और ये जो 0.7 है आप देख ही रहे हैं कि रेंज में आएगा. ये 0 से क्या है, बड़ा है, और 1 से क्या है, छोटा है. तो इस रेंज में आएगा ये. ओके, ये इस रेंज में आएगा, इसलिए ये क्या होगा, और केवल आंसर आपका बी होगा, जो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए. क्वेश्चन नंबर 5, इफ
P E यानी कि इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज इक्वल टू 0.05, देन what is the probability of not E. Okay student, now you see. Now in complementary events you know the formula, that's if the sum of the probability of an event plus the probability of not events इक्वल टू 1, ये होता है फार्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दिया है आपका 0.05, आप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, आई इक्वल टू 1 होता है। तो पी नॉट ई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 1 माइनस 0.05 करेंगे, तो 1 में से यहाँ माइनस कर दीजिए, 100 तो 0.05 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया 9, यहाँ 9 बच जाएगा, 10 में से 5 गया क्या होगा, 5 होगा स्टूडेंट, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ 9 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या 9 है, यहाँ हो जाएगा 0, तो 0.95, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई का आंसर हो जाएगा आपका ये 0.95। ओके, नाउ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, आप बुक में देखिए क्या बोल रहा है ये, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मॉलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेकन आउट। तो आप ध्यान से पढ़िए इसको, कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाता है कि एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखा गया है, केवल ओनली लिखा है, ध्यान से देखिए। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। स्टूडेंट, जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप, ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। इसलिए आप इसका आंसर होगा पहले का कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या होगा, इम्पॉसिबल, 0। मान लीजिए कि नंबर आप जो लेमन रखा है, लेमन फ्लेवर्ड, वो n है, ये तो 0 है, हाँ, ऑरेंज कलर तो है नहीं है इसमें, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर, तो लेमन फ्लेवर तो होगा क्योंकि लेमन ही फ्लेवर रखा गया है उसमें, तो लेमन फ्लेवर रखा गया है, तो नंबर ऑफ दो लेमन फ्लेवर एन ही होगा और टोटल भी एन ही है, तो इसलिए वो होगा, ये पॉसिबल होगा। हाँ, तो ये आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर हो गया, ऑरेंज उसमें है ही नहीं है तो इसलिए 0 हो गया, और ये 11 फ्लेवर ही है, 11/11 है तो इसलिए 1 हो गया। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाँ, बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे जो हैं डर जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कैसे होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे हो रहा है इजी। आप देखिए आराम से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने बुक रख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िए। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992
एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ये ग्रुप है कितने का, 3 स्टूडेंट का, जिसमें 2 स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग है इतना, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो आप इसको क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स having the same birthday इक्वल टू क्या निकालना है आपका, ये निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा। और दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये दिया है। कितना दिया है स्टूडेंट्स, P नॉट E, ये नॉट का सिंबल हो जाता है जिसको हम कभी कभी बार बोलते हैं। तो ये आपका दिया है 0.992। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगा दीजिए, एक होने का और एक नहीं होने का, दोनों का सम क्या होता है बताइए। हाँ, ये दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये PE प्लस 0.992 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये P 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.992 स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ से इजीली माइनस कर दीजिए, 0 0 0, आप देखिए 992, ये लगा दीजिए। तो अब यहाँ 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 0 हो चुका है। तो आपका ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.008, दिस इज आंसर, ये आज का आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, कितना इजीली आप कर लेंगे, कहेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है ये।